Hello, everybody. A very warm welcome to all of you. Hi, guys. This is me, Vani Mehra, and I welcome you to the Sociology series on Vani Academy. So, here we are with the next class that is on the first chapter today. The first chapter of Sociology we are going to do. Guys, what you can do is you can always comment in the comment section in order to ask any of your doubts or issues that you're facing because I really want you people to learn in the best possible manner that we have. First chapter in sociology is the discipline. As I told you before, understanding any detail about anything, what we really need to know is the meaning of the subject. Why are we doing the subject? How did this as a subject emerge? You might be looking for a book list. A detailed book list will be sent on the Telegram channel today of Sociology Optional by Vani Mehra. The link of the Telegram channel will be given in the description box. Also, I have also provided you people my number so you can WhatsApp me on that number so that we can add you in the sociology optional group and you can, commence your education or you can say the preparation from there. Let me just start talking with the discipline, modernity, social change in Europe. What exactly took place, how it is, let's understand. So, guys, when I read the NCRT or when you read the NCRT material, which is class 11, 12, it says that new capitalist class had emerged and a new middle class had inflated at this particular period of time in Europe. One of the most fundamental aspect of new order was that the labor which was working at that particular period of time had to face degradation and a new kind of urban world had started emerging, marked with soot, grime, overcrowded slums, which led to new kinds of problems. Because when urbanization started taking place, obviously people had to accommodate or one of the another place. When people wanted to accommodate in one or the other place, what started happening was that overcrowding of slums areas started happening. And slum areas always have come up with different kind of problems. So this is absolutely to be understood here that when these slum areas started coming up, or you can say more people started coming to the urban area, started settling, then more people settling together, living together would obviously have a lot of other issues that they would be facing with respect to health, with respect to hygiene, with respect to socialization, etc. In the year 1810, 20% of people lived in cities, which increased to 80% in 1910 Britain. Sociology at that time emerged as a discipline to explain such drastic measures. A lot of changes were taking place in the society when people were started coming together. जब लोग आपस में एक साथ रहना स्टार्ट हो गए, एकदम से इन्फ्लक्स हो गया अर्बन एरियाज में लोगों का, तो उस टाइम ये नहीं समझ आ रहा था कि हम ऐसी कौन सी स्टडी करें जिससे हमें पता लगे कि ये सोसाइटी में या लोगों के बीच में ये जो चेंज ऑफ बिहेवियर है, उनका आपस में रहना, कम्युनिटीज़ के अंदर रहना, ग्रुप्स के अंदर रहना, एक अलग ही आप कह सकते हो वेव जो है वो उस टाइम पे बिगिन हो चुकी थी। और ये समझना मुश्किल था कि इसे हम किस तरह से पढ़ें, हम इस स्टडी को क्या बोले। उस टाइम पे स्टडी का कोई नाम नहीं था, इसीलिए हमने इस स्टडी को एक्सप्लेन करने के लिए एक नए डिसिप्लिन का जन्म हुआ जिसका नाम था सोशियोलॉजी। It resorted to positivistic methods initially, as such methods were in vogue across disciplines and helped gain wider acceptance. Early sociologists even tried to find solution and universal laws through their study of society. जब भी हम सोसाइटी को पढ़ते हैं, सोसाइटी को पढ़ने वक्त हम सोसाइटी में रहने वाले लोगों को पढ़ते हैं, उनके बिहेवियर को, आपस में वो कैसे रहते हैं, एक दूसरे से किस तरह से बातचीत करते हैं, सोशल एटमॉस्फेयर में वो किस तरह से बिहेव करते हैं, किस तरह से सोशल एक्शन या सोशल एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, कैसी भाषा में वो इंटरेक्ट करते हैं, कौन सी भाषा वो इस्तेमाल करते हैं अपने आसपास के लोगों से, अपने क्लोज वन से, कैसे वो फॉर्मल सेटअप में बिहेव करते हैं। तो सोशियोलॉजी का मतलब कुछ नहीं है, बट इट इज़ दी interaction of human beings and their behavior into the society.
और इसी सबको समझने के लिए हमें एक डिसिप्लिन, एक सोल्यूशन, एक सब्जेक्ट की ज़रूरत थी। जो अर्ली सोशियोलॉजिस्ट थे वो इस चीज़ में मानते थे कि कोई ना कोई यूनिवर्सल लॉज एग्जिस्ट करते हैं इस पूरी सोसाइटी को पढ़ने के लिए। देखिए, जब भी हम सोशियोलॉजी की बात करते हैं, बिगिनिंग ऑफ कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, तो हम कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो उसके साथ के रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं उनके बारे में हमेशा बात करते हैं, जैसे कि फ्यूडलिज्म, रेनेसाइंस, कमर्शियल रेवोल्यूशन, साइंटिफिक रेवोल्यूशन, रेफॉर्मेशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, एनलाइटनमेंट, फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड मॉडर्निटी। ये धीरे धीरे एक एक करके सब चीज़ें हुई, सोसाइटी में बदलाव आया, what all changes took place. We talk about that in detail. So guys, मैं background के बारे में बात करूंगी. There is always a connection between the social conditions of a period and ideas which arise and are dominant in that period. जैसे कि आप एक बात कर सकते हैं, आज का समाज है, आज जिस समाज में हम रह रहे हैं इस टाइम पे पैंडेमिक के बीच में, अभी 2020 की मैं बात कर रही हूँ, तो पैंडेमिक के बीच में जिस तरह से सोशल कंडीशंस एग्जिस्ट करती है एक पीरियड की, जिस तरह से आइडियाज़ एग्जिस्ट करते हैं, वो आपस में कनेक्टेड होते हैं और वो उस पीरियड के अंदर डोमिनेंट होते हैं। जिस तरह से आज का समाज है काफ़ी लिबरल समाज है, आज लोगों के पास अपनी आवाज़ है, बात करने के लिए मुद्दे हैं, प्रोटेस्ट करने के लिए लोगों के पास फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। उस तरह की सोसाइटी जो थी वो अलग सोसाइटी थी, वो अलग समाज था। लोगों में अलग तरह का एक नेशनलिज्म की फीलिंग थी कि नहीं थी, हर नेशन पे डिपेंड करता था किस तरह से लोग यूनाइट करते थे। एक अलग क्लास ऑफ पीपल जो थी इमर्ज हो रही थी। इसका मतलब ये था कि वो लोग जो सोसाइटी में ऊंचे वर्ग के थे, जो सबसे आगे आते थे, जिन्हें हम क्लास इन इटसेल्फ बोलते थे, कार्ल मार्क्स की भाषा में अगर मैं बताऊं तो। दूसरी तरफ सोसाइटी बढ़ गई थी उन लोगों में जिन्हें हम क्लास फॉर इटसेल्फ कहते थे। सो व्हेन वी लुक एट दीज टू काइंड ऑफ सेटअप इन द सोसाइटी, क्लास इन इटसेल्फ वो लोग थे जो हैव्स थे, मतलब जिनके पास सब मीन्स थे, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन थे, रिसोर्सेज थे, सब कुछ थे। और क्लास फॉर इटसेल्फ वो लोग थे, या हैव नॉट्स वो लोग थे जिनके पास कोई भी चीज़ नहीं थी, जो इनके लिए काम कर रहे थे। इसे मैं आपको अगर समझाऊं तो एक आप फैक्ट्री सेटअप की बात कर सकते हैं, जहाँ पे एक होता है एम्प्लॉयर और एक होता है एम्प्लॉय। एम्प्लॉयर, जो एम्प्लॉयर होता है वो एम्प्लॉय से कोई भी काम करवा सकता है, पर जो एंड क्रेडिट होता है एम्प्लॉय के बनाए हुए प्रोडक्ट का, वो एम्प्लॉयर और उसकी ऑर्गेनाइजेशन को जाता है, ना कि इस एम्प्लॉय को। इसे समझने के लिए सोशियोलॉजिस्ट काफ़ी अच्छे एग्जाम्पल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे किसी ने एक शूज़ बनाया, एक शूज़ बनाने के बाद आप किसी भी कंपनी का शूज़ का एग्जाम्पल ले सकते हैं, आपको हमेशा उस ब्रांड की वैल्यू पता होगी, आपको वो जूता उस ब्रांड के नाम से खरीदा जाएगा। आप नहीं जानते होगे कि उसके पीछे कौन से वो इंसान या लोग या वो ग्रुप ऑफ पीपल थे जिन्होंने उस शूज़ के ऊपर काम करके उस शूज़ को तैयार करके आपके लिए बनाया। इसका मतलब होता है एलियनेशन, मतलब जिसने वो प्रोडक्ट बनाया वो प्रोडक्ट उसी का नहीं रहा। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये धीरे धीरे हम बात करेंगे आगे अपकमिंग लेसन में। तो सोशियोलॉजी के इमर्जेंस एज अ साइंस उस टाइम पे हो रही थी। इमर्जेंस ऑफ दिस सब्जेक्ट एज अ साइंटिफिक डिसिप्लिन कैन बी ट्रेस टू द पीरियड ऑफ यूरोपियन सोसाइटी। यूरोप की जो सोसाइटी थी, सोशियोलॉजी का जो जन्म है हम उसी सोसाइटी से देखा जाता है, विच सॉ सच ट्रिमेंडस सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक चेंजेस। बहुत ही अलग अलग तरह की सोशल चेंजेस हो रहे थे यूरोप में, पॉलिटिकल चेंजेस हो रहे थे, इकोनॉमिक चेंजेस हो रहे थे, एंड दैट वाज एम्बॉर्डेड इन द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। ऐसा माना जाता है, कहा जाता है कि जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है उसने पूरे समाज में बहुत ज़्यादा बदलाव लेकर आई है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, पहले लोग जो थे वो सिर्फ अपने लिए काम करते थे। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के आने के बाद लोगों ने प्रोडक्ट्स बनाने स्टार्ट कर दिए, मार्केट में बेचने स्टार्ट कर दिए, लोगों ने माइग्रेट करना स्टार्ट कर दिया। पहले वो सिर्फ अपने लिए प्रोड्यूस करते थे जो भी वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स है। उसके बाद लोग जब माइग्रेट होना स्टार्ट हो गए, सिटीज़ की तरफ जाना स्टार्ट हो गए जहाँ पे इंडस्ट्री लगती थी, तो लोगों में एक वेज कल्चर आ गया। वेज कल्चर माने तो कि अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो उसके बदले आपको पैसे मिलेंगे। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की शुरुआत, उसके बाद जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है जिसमें हम आइडियाज़ ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी की बात करते हैं,
ये ऐसे सिद्धांत है, ये ऐसी बातें हैं, ये ऐसे वैल्यूज है जिन्हें आज हम अपने संविधान के अंदर भी पाते हैं। हम अपने संविधान और अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इन वैल्यूज को आज भी देखते हैं। तो इस तरह के बदलाव आ रहे थे। लिबर्टी के जो आइडियाज थे वो समाज को बदल रहे थे। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जैसे आइडियाज इकोनॉमिक्स को बदल रहे थे। और जहां तक हम बात करते हैं फ्रेटर्निटी की बात करते हैं, इक्वालिटी की बात करते हैं, ये सारे आइडियाज एक अलग ही वेव ऑफ पॉलिटिकल मूवमेंट को जन्म दे रहे थे, जहां लोगों को एक अवेयरनेस आनी स्टार्ट हो गई कि हम जो एज अ समाज या लोग हैं, हम काफ़ी पावरफुल हैं, हमारे पास काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो हम सोसाइटी में कर सकते हैं और सोसाइटी को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। इस पूरे बदलाव को यूरोपियन सोसाइटी में एक नाम दिया गया जिसका नाम था एनलाइटनमेंट। इसका मतलब लोगों के अंदर जागरूकता आ गई। जागरूकता किस चीज़ को लेकर? कि हम कमज़ोर नहीं हैं, अगर हम चाहें तो हम इकोनॉमिकली भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। हम ऐसे प्रोडक्ट बना सकते हैं जिससे कोई, आप कह सकते हैं कंपनी, फैक्ट्री, एम्प्लॉयर, कोई भी, वो इतना पैसा कमा सकते हैं कि हम एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर बन सकते हैं। ये पहली सोच जो लोगों में जन्म हुई। दूसरी सोच कि हमारे पास लिबर्टी के जो आइडियाज़ है, जहाँ लिबर्टी है वहाँ लॉज है। ये बात आप भी जानते हैं, आप लोगों ने इतना तो यूपीएससी में पढ़ा ही होगा कि जहाँ लिबर्टी है वहाँ लॉज है। तो अगर इंसान चाहे तो अगर वो अपनी लिबर्टी को एक्सरसाइज करे लॉ की विद इन लिमिट में रहकर, तो इसका मतलब ये है कि पॉलिटिकल अवेयरनेस कहीं ना कहीं लोगों में आ रही थी। और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और फ्रेंच रेवोल्यूशन के इस पूरे बदलाव की वेव को एक नाम दिया गया जिसे कहा गया एनलाइटनमेंट। देखिए, मैं आपको बता रही थी कि यूरोपियन सोसाइटी में बदलाव हुए, देयर वर चेंजेस इन द यूरोपियन सोसाइटी। अब पुराना यूरोप ट्रेडिशनल था। हम आज यूरोप को देखते हैं, इतना सुंदर देखते हैं, हम देखते हैं कि यूरोपियन सोसाइटी तो बहुत ही अर्बनाइज्ड है, बहुत ही मॉडर्न है। वहाँ का कल्चर, वहाँ के लोग, वहाँ की बातें, वहाँ का मॉडर्नाइज कल्चर, इस कल्चर का जन्म इसी टाइम पे हुआ था जब लैंड, इस टाइम पे पहले ट्रेडिशनल यूरोप एग्जिस्ट करता था। ट्रेडिशनल यूरोप का बहुत ही सिंपल सा मतलब है कि लैंड वॉज सेंट्रल टू इट्स इकोनॉमिक सिस्टम। कहीं ना कहीं ये एग्रीकल्चर सोसाइटीज में आज भी एग्जिस्ट करता है कि जो ज़मीन है वो इकोनॉमिक सिस्टम की सबसे आप कह सकते हैं सेंट्रल आइडिया है। लैंड इज अ सेंट्रल आइडिया ऑफ द इकोनॉमिक सिस्टम। और क्लासेस, जितनी भी क्लासेस थी, दे वर डिस्टिंक्ट एंड क्लियरली डेमार्केटेड। हर क्लास जो थी सोसाइटी में उस टाइम पे क्लियरली डिस्टिंक्ट थी और डेमार्केटेड थी। अब बात यह है कि उस टाइम पे क्या सही है क्या गलत है, कौन डिसाइड करेगा? हम सबके लाइफ का जो सबसे इम्पोर्टेंट मूल मंत्र कह लीजिए, या आप कह लीजिए एक धरोहर है जो हम कैरी फॉरवर्ड करते आ रहे हैं, या कहीं ना कहीं अगर हम भटकते हैं सोसाइटी में, समाज में, अपनी ज़िंदगी में, तो हमारे लिए सबसे ऊपर जो चीज़ है जो हमें अवेयर करती है वो है हमारा धर्म। धर्म एक ऐसी चीज है जो इंसान को अपनी वैल्यूज और अपने मॉरल्स के पास लेकर आता है। दो जो डेफिनेशन है रिलीजन की वो चेंज होती जा रही है, हर इंसान के लिए अलग हो सकती है। अगर हम संविधान की भाषा में बात करें तो हमारा देश एक सेकुलर देश है, पर हर इंसान और व्यक्ति को अपनी मर्जी का धर्म अपने अनुसार फॉलो करने की इजाजत भी है या फ्रीडम है। तो उस टाइम पे भी ऐसा था कि सोसाइटी में गलत क्या है, सही क्या है, वो कौन बताएगा? तो उस टाइम पे जो धर्म गुरु होते थे, जिन्हें हम रिलीजियस हेड कहते हैं, वो डिसाइड करते थे व्हाट वाज मॉरल, सोसाइटी में क्या अच्छा है क्या गलत है। फैमिली एंड किनशिप वर सेंट्रल टू लाइव्स ऑफ पीपल। परिवार के सदस्य लोगों के लिए सबसे ज्यादा अहमियत रखते थे। इस तरह की सोसाइटीज आज एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि आज हम बहुत ही अर्बनाइज वर्ल्ड में रह रहे हैं, जहाँ पे हम एक कंपटीशन में हैं, चाहे हम माने या ना माने, हम कंपटीशन में है विद इन अ ओवरऑल कल्चरल एस्पेक्ट, विद इन द पीपल ऑफ अ कम्युनिटी, विद इन द पीपल ऑफ अ सोसाइटी। वी हैव टू लिव अ बेटर लाइफ स्टाइल। हमें हर तरह के अपने आसपास उस हर चीज़ की ज़रूरत है जिससे हमारा जो लाइफ स्टाइल है वो बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाए। इसलिए आज की सोसाइटी अलग है, बट उस टाइम पे जो सोसाइटी है वहाँ पे वो जो कॉन्सेप्ट थे, परिवार के लिए अपनी जान दे देना, या आप कह सकते हो अपने परिवार के लिए अपना पूरा जीवन मतलब वो कर देना, त्याग कर देना, ये सब तरह के जो आइडियाज़ है उस तरह की सोसाइटी में भी एग्जिस्ट करते थे।
हालांकि आज ये मानना मुश्किल है कि यूरोपियन सोसाइटी में ऐसी कोई चीजें होती होगी, बट ये सच है। Monarchy was firmly rooted in society, and the new Europe ushered in by the two revolutions, the French and the Industrial. मोनार्कियल सेटअप था, कोई डेमोक्रेसी नहीं थी, ऐसा नहीं था कि लोकतंत्र एग्जिस्ट करता था। उस टाइम पे मोनार्की एग्जिस्ट करती थी, जहाँ पे सोसाइटी के अंदर एक ही हेड को माना जाता था। और नया यूरोप जब जन्म हुआ, नए यूरोप का, तो उसका जो मूल आप कह सकते हैं एक बैकग्राउंड रीजन था, वो था ये दो रेवोल्यूशंस जो की थी फ्रेंच एंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। सोशल कंडीशन इन विच सोशियोलॉजी इमर्ज्ड, ऐसी कौन सी कंडीशंस थी सोसाइटी की जिसमें सोशियोलॉजी का जन्म हुआ? देखिए, द कमर्शियल रेवोल्यूशन रेफर्स टू अ सीरीज ऑफ इवेंट्स बिटवीन 1450 टू अप्रॉक्सीमेटली 1800। कमर्शियल वर्ड से आप समझ गए होंगे कि हम कहीं ना कहीं कमर्स या गुड्स एंड सर्विसेज के रिलेटेड बात कर रहे हैं, बिल्कुल सही। 1450 से लेके 1800 तक ये एक ऐसी एरिया था जिसमें कमर्शियल रेवोल्यूशन हो रही थी, एक सीरीज ऑफ इवेंट्स थे जब चेंजेस हो रहे थे। इसका मतलब ये था कि अब एक्सपेंशन होना स्टार्ट हो गया ट्रेड एंड कॉमर्स में, विच टुक प्लेस फ्रॉम 15th सेंचुरी ऑनवर्ड्स। ट्रेड एंड कॉमर्स मतलब कि आप कोई गुड्स खरीद रहे हैं, आप कोई गुड्स उसके बदले में बेच रहे हैं। ये इतना लार्ज स्केल था, इतना ऑर्गेनाइज मैनर था, दैट वी कॉल इट अ रेवोल्यूशन। देखिए, जब भी कोई चीज एक बहुत ही लार्ज स्केल पे होती है, इतने लार्ज स्केल पे कि ना ही वो उस सोसाइटी और कम्युनिटी या उस पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को हेल्प करती है, बट वो एक तरह से बैकग्राउंड बनती है, ग्राउंड स्टोरी बनती है और बहुत सारे चेंजेस की पूरे वर्ल्ड में, उसे हम बोलते हैं रेवोल्यूशन। तो कहीं ना कहीं ये सिर्फ एक छोटे बदलाव नहीं थे, ये इतने बड़े बड़े बदलाव थे कि इनसे एक रेवोल्यूशन का जन्म हुआ। उस टाइम पे क्योंकि हम कॉमर्स और ट्रेड के अंदर जा रहे थे, गुड्स एंड सर्विसेज खरीद रहे थे, बेच रहे थे, तो हमारा जो बैंकिंग था उस सेक्टर का एक्सपेंशन हुआ। जिस तरह की बैंकिंग आप आज देखते हैं शायद उतनी ऑर्गेनाइज नहीं हो सकती, बट क्रेडिट फैसिलिटीज एक्सपैंड कर दी गई। मतलब आप लोगों को किराए, मतलब आप लोगों को पैसे दे सकते हैं, उधार पे पैसे दे सकते हैं, मेकिंग इट ईजी फॉर मर्चेंट्स ऑल ओवर द यूरोप टू डू बिजनेस। आज किसी इंसान को अगर अपना बिजनेस खोलना है किसी भी तरह से, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है 5 फैक्टर्स। ये आप शायद पढ़े होंगे आपने बिजनेस स्टडीज में, जितने बच्चों ने बिजनेस स्टडीज ली होगी 11वीं 12वीं में। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ठीक है। और उसके बाद आप देख सकते हो कि किस तरह से यू नीड द योर एंटरप्रेन्योर हु विल बी चेकिंग ऑन ऑल ऑफ दीज थिंग्स एंड क्रेडिट फैसिलिटीज। अब बिजनेस करने के लिए सबसे पहली चीज जो है वो होते हैं आइडियाज। यूरोपियन सोसाइटी को ये तो समझ आ गया कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से वो बहुत फायदा कर सकते हैं, बहुत ज्यादा आगे बढ़ सकते हैं, जिसके लिए उन्हें किस चीज की जरूरत थी? उन्हें जमीन की जरूरत थी, उन्हें लेबर की जरूरत थी, उन्हें पैसे की जरूरत थी, उन्हें एंटरप्रेन्योर मतलब कोई ऐसा इंसान जो उस इंडस्ट्री को चला सके, बिजनेस को चला सके। तो यूरोपियन सोसाइटीज जब एक्सपैंड होनी स्टार्ट हुई, छोटे छोटे मर्चेंट्स आगे आ गए काम करने के लिए, उन्हें पैसों की जरूरत थी, वो पूरी करने के लिए क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करनी स्टार्ट की गई। और इसी से आज मैं आपको बताना चाहूंगी, शायद आप लोगों ने ये इकोनॉमिक्स में पढ़ा है, नहीं पढ़ा मैं नहीं जानती, पर जो चेक आज आप यूज करते हैं जिस तरह से, उसका जन्म भी 18 सेंचुरी 18 सेंचुरी के अंदर हुआ, जो चेक आज हम यूज करते हैं। और जो पेपर मनी है, इट केम टू रिप्लेस गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स। पहले क्या होता था, हम ट्रेड करते थे, बाटर ट्रेड करते थे, बाटर ट्रेड के बाद हम मेटल ट्रेड करते थे, इन द सेंस गोल्ड और सिल्वर कॉइन्स देके, अलग अलग मेटल की कॉइन्स देकर हम ट्रेड करते थे। अब हमने पेपर मनी का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया, और इसी के साथ जन्म हुआ एक नई क्लास का, जो थी बाय द एंड ऑफ 17th सेंचुरी द मिडिल क्लास। जी हाँ, आज हम बात करते हैं कि मिडिल क्लास के लिए सरकार ने क्या किया, मिडिल क्लास ऐसे, मिडिल क्लास वैसे। इस मिडिल क्लास का जन्म कब हुआ? इस मिडिल क्लास का जन्म इस सोसाइटी, यूरोपियन सोसाइटी से 17th सेंचुरी के अंदर जन्म हुआ। बाय द एंड ऑफ 17th सेंचुरी मतलब बिगिनिंग ऑफ 18th सेंचुरी मिडिल क्लास का जन्म हुआ। मिडिल क्लास मध्य वर्ग के वो लोग होते हैं जो ना ही हायर क्लास में एग्जिस्ट करते हैं ना ही लोअर में, वो इन द मिडिल एग्जिस्ट करते हैं। इसका मतलब नाइदर दे आर एक्स्ट्रा प्रिविलेज्ड और दे आर अंडर प्रिविलेज्ड।
ये एक इन्फ्लुएंशियल ग्रुप था इन नियरली एवरी वेस्टर्न यूरोपियन कंट्री। हर कंट्री में इस मिडिल क्लास के कॉन्सेप्ट का या इस ग्रुप ऑफ सोसाइटी का ये जो है जन्म हुआ। मिडिल क्लास के जन्म होने से हमें एक चीज समझ आती है जो हम आज भी रिलेट कर सकते हैं कि जब तक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नहीं थी तब तक हो सकता है कि हमारी सोसाइटी इगैलिटेरियन या इक्वलिटेरियन सोसाइटी थी। जैसे कि मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, ऋग्वेदिक सोसाइटी में सोसाइटी इक्वल होती थी, कभी भी ये ऊपर नीचे के भेदभाव ये एग्जिस्ट नहीं करते थे। उसके बाद जब वर्णा सिस्टम आया, ठीक है, फिर जाति के बेसिस पे भेदभाव करना जो हमने स्टार्ट किया, वो भेदभाव नहीं था, वो ऑक्यूपेशन बेस्ड डिविजन ऑफ सोसाइटी थी, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र में। बट हमने उस कॉन्सेप्ट को किस तरह से लिया कि हम सोसाइटी के अंदर 4 वर्गों के लोगों को डिवाइड कर रहे हैं, पर हम उनने 4 वर्गों के लोगों को ऑक्यूपेशन बेस्ड हायरार्की से हटाकर हमने कास्ट बेस्ड डिवीजन करना स्टार्ट कर दिया और हमने उनसे सोशल डिस्क्रिमिनेशन स्टार्ट कर दिया। ये है कास्ट सिस्टम की बात। क्लास का मतलब होता है जब लोगों के पास पैसे, इकोनॉमिक रिसोर्सेज जिस तरह से एग्जिस्ट करते हैं वो उस क्लास के अंदर आते हैं। उस टाइम पे जो मिडिल क्लास थी वो मध्य वर्ग के लोग थे, तो फिर वो ना ऊपर की क्लास में आते थे ना नीचे की क्लास में। और इसी के बाद कॉन्टिन्यूटी में एक अलग ही चीज हुई जो थी साइंटिफिक रेवोल्यूशन एंड रेनेसांस पीरियड। देखिए, जो हमारा विज्ञान है, जो हमारी साइंस है, ये बहुत ही ब्यूटीफुल लाइन अगर आप देखें, साइंस डज नॉट डेवलप इंडिपेंडेंट ऑफ सोसाइटी। विज्ञान का जन्म समाज के बिना नहीं हो सकता। अगर आज आप देखें पैंडेमिक के अंदर अगर हम वैक्सीन के बारे में सोच रहे हैं, ऐसी वैक्सीन जो ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन ऑफ अ वायरस को कंट्रोल करने की बात कर रही है, हम ऐसे प्रोसीजर्स के बारे में सोच रहे हैं, हम ऐसे डेवलपमेंट के बारे में सोच रहे हैं कि अंदर नियर फ्यूचर अगर ऐसी कोई चीज़ है तो हम उसे प्रिडिक्ट करने के बारे में सोच सके, ये हमारी सोसाइटी से जन्म हुआ है। इसका मतलब जितनी तेजी और रफ्तार से हमारा समाज आगे बढ़ रहा है, उतनी ही तेजी और उतनी ही रफ्तार से हमारा विज्ञान भी आगे बढ़ता है। आर साइंस डेवलप्स नॉट इंडिपेंडेंटली बट डिपेंडेंट ऑन द सोसाइटी एंड द डेवलपमेंट इन द सोसाइटी। सो इट डेवलप्स इन रिस्पॉन्स टू ह्यूमन नीड्स। जिस तरह से हमारी जरूरत है उसी तरह से साइंस अपना जन्म लेती है। फॉर एग्जाम्पल, वेरियस वैक्सीन्स were not developed just out of the blue but out of the necessity to cure diseases. रेनेसांस पीरियड जो था, ये जो पीरियड इमर्ज हुआ, इसके अंदर विजुअल आर्ट, मेडिसिन, केमिस्ट्री, नेविगेशन, एस्ट्रोनॉमी, Copernican revolution from geocentrism to heliocentrism, इन सब चीज़ों का जन्म हुआ। इसका मतलब सोसाइटी में अब हम और एस्पेक्ट्स को देखना स्टार्ट हो गए। कहीं ना कहीं हम जो दवाइयाँ आज लेते हैं या जो कहीं ना कहीं हम साइंस देखते हैं, इन सब का जन्म इसी सोसाइटी के साथ हुआ। लोगों ने रूरल एरिया से अर्बन एरियाज में या एक एरिया से दूसरे एरिया में माइग्रेट करना स्टार्ट हुआ। जैसे वो माइग्रेट करना स्टार्ट हुए तो उनकी अलग अलग ज़रूरतें, प्रॉब्लम्स आगे आना स्टार्ट हुई, जिस हिसाब से साइंस के अंदर हमें रेवोल्यूशन या चेंजेस करने की ज़रूरत पड़ी। और साथ ही साथ जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है जिसने इतना बदलाव लाया, जिसका जन्म हुआ था 1789 में, इट मार्क्ड अ टर्निंग पॉइंट इन द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन स्ट्रगल फॉर फ्रीडम एंड इक्वालिटी। इट पुट एन एंड टू द एज ऑफ फ्यूडलिज्म एंड अशर्ड इन अ न्यू ऑर्डर ऑफ सोसाइटी, द बेसिक पिक्चर ऑफ द फ्रेंच सोसाइटी। बहुत तरह के बदलाव है जो हमने सोसाइटी में देखे फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद। पहले फ्यूडलिज्म एग्जिस्ट करता था, फ्यूडल लॉर्ड एग्जिस्ट करते थे, बट उसके बाद जब हमने चेंजेस देखे, जब हमारी फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई, सोसाइटी के अंदर एक अलग ही वेव, एक नया ऑर्डर एग्जिस्ट करना स्टार्ट हो गया। नाउ द बेसिक पिक्चर ऑफ फ्रेंच सोसाइटी वाज डिवीजन इनटू फ्यूडल एस्टेट्स। Estates are defined as a system of stratification found in feudal European societies whereby one section of society, is leading the other section of society. यहाँ दो तरह की क्लासेस थी, एक था फर्स्ट एस्टेट और एक था क्लर्जी। जो फर्स्ट एस्टेट था, इट कंसिस्टेड ऑफ क्लर्जी विच वॉज स्ट्रैटिफाइड इनटू हायर क्लर्जी, मतलब ऊपर के अगेन सोसाइटी में डिविजन, सच एज द कार्डिनल, द आर्क बिशप, द बिशप्स एंड द अबॉट्स। They lived a life of luxury and gave very little attention to religion.
एक बात समझने वाली है, शायद आप लोग इस चीज को समझ पाए, ये बहुत ही कम लोगों पे अप्लाई करती है, ये एक जनरलिस्टिक थ्योरी है, हम इसे स्पेसिफिक बिल्कुल भी ना समझे। जितने भी सोसाइटी में ऊपर वर्ग के लोग होते हैं, उनका बिलीफ इन रिलीजन will be very different from the belief of religion of a person who is very poor. आप मंदिर के सीढ़ियों में या आप किसी भी रिलीजियस प्लेस के बाहर जाएंगे, वहां पे आप एक अंडर प्रिविलेज पुअर पर्सन जो होगा उसे बेग करते देखेंगे। कभी भी आप एक बहुत ही बड़े इंसान को मंदिर के बाहर, मस्जिद के बाहर, गुरुद्वारे के बाहर या कहीं भी किसी भी रिलीजियस प्लेस के बाहर खड़े होके भीख मांगते नहीं देखेंगे, भीख मांगते, हेल्प मांगते, कुछ भी। इसका सबसे इंपॉर्टेंट आप कह सकते हो जो सिग्निफिकेंस है वो हमें यूरोपियन सोसाइटी से समझ आता है कि उस टाइम पे जो ऊपर के लोग थे, जो ऊपर की सोसाइटी एग्जिस्ट करती थी, वो जो थे वो लाइफ जीते थे लग्जरी की, और उनको धर्म के बारे में बहुत ही कम रुचि थी, उनकी जो अटेंशन थी टुवर्ड्स रिलीजन वाज वेरी लेस। जो सेकेंड स्टेट थी, इट कंसिस्टेड ऑफ नोबिलिटी। There were two kinds of nobles, the nobles of the sword and the nobles of the rope. उस टाइम पे दो तरह के एग्जिस्ट करते थे। And third estate comprised of the rest of society and included the peasants, the merchants, the artisans and others. ये जो थर्ड स्टेट थे, इसके अंदर सोसाइटी एग्जिस्ट करती थी, पीजेंट्स होते थे, मर्चेंट्स होते थे, आर्टिसंस होते थे, सब तरह के लोग, अलग अलग तरह के लोग। इन शॉर्ट, जैसे जैसे हम स्टेट डिवीजन की बात करेंगे उस तरह से आप बात कर सकते हैं कि उनका जो रोल था या जो उनकी एक्टिविटीज थी उस तरह से डिवाइडेड थी। क्योंकि हम फ्रेंच सोसाइटी की बात कर रहे हैं तो इस सोसाइटी का जो पॉलिटिकल एस्पेक्ट है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। लाइक इन ऑल द एब्सोल्यूट मोनार्कीज, द थ्योरी ऑफ डिवाइन राइट ऑफ किंग वाज फॉलोड इन फ्रांस टू फॉर अबाउट 200 years। डिवाइन राइट ऑफ किंग मतलब कि जो हमारा राजा है उसी का अधिकार है हमारे पे या हमारे किए हुए काम पे। तो पॉलिटिकल एस्पेक्ट ऑफ द फ्रेंच सोसाइटी ये था कि राजा जो मोनार्क था उस पे जो बिलीफ था वो बहुत स्ट्रॉन्ग था। द पॉलिटिकल एस्पेक्ट वाज दिस, एंड मोनार्क हैड द लिबर्टी टू डू व्हाटएवर दैट ही वांटेड टू डू विद द पीपल एंड कुड डिसाइड एनीथिंग फॉर द पीपल ऑफ द सोसाइटी। अगर मैं बात करूं इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ फ्रेंच सोसाइटी की, so let me tell you guys, the kings of France from Louis XIV onwards fought costly wars which widened the country, and when Louis XIV died, France had become bankrupt. फ्रांस एकदम से बैंकरप्ट हो गया था। दैट मीन्स उस टाइम पे कुछ भी नहीं बचा था फ्रांस के पास, और इसी कारण सोसाइटी के अंदर अलग अलग रेवोल्यूशंस का जन्म होना स्टार्ट हुआ। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट्स इन फ्रांस, ऑब्वियसली जब लोगों में इतनी अवेयरनेस आ रही है तो इंटेलेक्चुअली भी बहुत अवेयरनेस आ रही होगी। सो सम ऑफ द मेजर फिलोसोफर्स हुज आइडियाज इन्फ्लुएंस द फ्रेंच पीपल वर रैशनलिस्ट। रैशनलिस्ट उन्हें कहा जाता है जो हर चीज को सवाल करते हैं, हर चीज का जवाब मांगते हैं। Who believe that all the true things could be proved by reason। जितनी भी ट्रू थिंग्स है उन्हें हम एक रीजन के साथ प्रूव कर सकते हैं। Some of these thinkers were Montesquieu, लॉक, वॉल्टेयर एंड रूसो। इसका मतलब जितनी भी चीजें हैं सोसाइटी में, जितनी भी हम आइडियाज की बात करते हैं, इन सब आइडियाज के पीछे कोई रैशनैलिटी जरूर एग्जिस्ट करती है। इसका मतलब हमारे पास क्वेश्चन करने के लिए कोई ना कोई फैक्ट या कोई ना कोई चीज जरूर होगी कि हम सोसाइटी में उन चीजों पे सवाल उठा सकें। अब आम लोग इन चीजों को नहीं कर पाते थे, इसीलिए हम बात करते हैं एजुकेशन की या इंटेलेक्चुअल्स की, जो उस टाइम इतने पढ़ लिख गए थे कि उन्होंने सोसाइटी में, समाज में होने वाली डेवलपमेंट में हर चीज पे सवाल उठाया और उसके पीछे के रीजन को ढूंढा और लोगों को बताया कि अगर आज कोई सोसाइटी में किसी भी तरह के चेंजेस हो रहे हैं उसके पीछे का बैकग्राउंड रीजन क्या है। फ्रांस के अगर मैं इंपॉर्टेंट इवेंट्स की बात करूं तो इन फ्रांस देयर वाज अ पार्लियामेंट्री बॉडी, जिसे कहा जाता था एस्टेट जनरल, इन विच ऑल द थ्री एस्टेट्स वर रिप्रेजेंटेड but which had met last in 1614. The refusal of the first two estates to meet with the third estate as a single body led to formation of National Assembly. 20 जून 1789 को जब एक मीटिंग हुई
In the hall at Versailles near Paris, the members found that it was closed and guarded by the king's men. जो नेशनल असेंबली का फॉर्मेशन हुआ. Therefore, National Assembly members led by their leader Ballet went to the next building, which was an indoor tennis court. It was here that they took an oath to draw a new constitution for France. जब उन्हें इस तरह के बदलाव सोसाइटी में इस तरह की चीज़ें दिखी, तब उन्होंने सोचा कि नहीं, अब हमें ज़रूरत है कि हम एक नया संविधान बनाएं. फ्रांस की सोसाइटी को एक नए कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत है. यहाँ तक अगर आपको समझ आया है तो इसी टाइम आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें. ये मैं अपने लिए नहीं बोल रही हूँ, बिकॉज यू पीपल मस्ट बी नोइंग दैट आई एम ऑलरेडी टीचिंग. तो अगर आप ऐसे अपडेट्स चाहते हैं, बिकॉज इट्स अ फ्री कोर्स एंड इट्स अ फ्री इनिशिएटिव, देयर इज नथिंग दैट आई एम टेकिंग फ्रॉम यू पीपल. Definitely, I would request all of you to subscribe to the channel and share the video, because there are a lot of people right now who probably can't go to a coaching or probably can't take optional as a, you can say, paid course or whatever. So I'm trying to teach this course. Let me also tell you, ये 2020 के बच्चे जो 21 का टाइम देंगे, 22 का, 23 का जब भी देंगे, उन सबके लिए हेल्पफुल रहेगा. रीज़न इसके हम इसे बहुत कॉम्प्रिहेंसिव वे में कर रहे हैं. हमारे इस पूरे इवेंट का रिस्पॉन्स जितना भी अच्छा होगा, उसी के हिसाब से आई विल ऑल्सो इनिशिएट full length courses in the future, and then answer writing initiatives on the same line. तो चलिए हम चलते हैं अगली स्टोरी, दैट इज इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पे. द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन began around 1760 AD in England. It brought about great changes in the social and economic life of the people. First in England, then in the other countries of Europe, and later in other continents. धीरे धीरे कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का पहले जन्म हुआ और उसके बाद धीरे धीरे वो स्प्रेड होना स्टार्ट हो गया. अगर मैं न्यू इन्वेंशन की बात करूं, देन वन ऑफ द सिग्निफिकेंट मैकेनिकल इन्वेंशंस वाज दिस इन्वेंशन, which led to a quicker and better method of production in various industries. और यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट जो आप कह सकते हैं चेंज था, वो था स्पिनिंग जेनी का. स्पिनिंग जेनी को इन्वेंट किया गया था 1767 में बाय जेम्स हार्ग्रीव्स एंड इंग्लिश वीवर. और यहीं से आप कह सकते हो शुरुआत हुई इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की एक नई जोन की, जहां वीविंग, स्पिनिंग, इन सब चीजों का जन्म हुआ. और धीरे धीरे ये पूरे ही समाज में या पूरे ही कॉन्टिनेंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड स्प्रेड होना स्टार्ट हो गया. आज आप बता सकते हैं कि पूरे कंट्रीज या पूरे वर्ल्ड में हर जगह आप देखेंगे अलग अलग तरह की स्पिनिंग एंड वीविंग प्लांट्स हैं. तो उसका जन्म जो है यूरोपियन सोसाइटी से हुआ. कितना इंटरेस्टिंग लगता है इन चीज़ों को पढ़ना अपने आप में, क्योंकि सोशियोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हम अपने आसपास की चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं. आपको ये सब्जेक्ट शायद पहले के दो चैप्टर्स, या आप कह सकते हो 2-3 चैप्टर्स हैं जहाँ आपको शायद हिस्टोरिकल एस्पेक्ट समझने में थोड़ा टाइम लगेगा. बट जैसे जैसे हम इसमें आगे जाते जाएंगे आपको लगेगा आप कुछ नहीं, बस अपने आसपास की दुनिया के बारे में पढ़ रहे हैं. इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का समाज पे किस तरह से इफेक्ट था, तो कैपिटलिज्म बिकेम मोर एंड मोर कॉम्प्लेक्स. जितने बड़े लोग होते गए उतना कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती गई. बैंक्स की डेवलपमेंट होती गई, इंश्योरेंस कंपनीज की डेवलपमेंट होनी स्टार्ट हो गई, फाइनेंस कॉरपोरेशंस, ये सब चीज़ों का जन्म होना स्टार्ट हो गया. और इंडस्ट्रियल वर्कर्स की एक नई क्लास आ गई. अब देखिए दूसरी क्लास का जन्म हो रहा है यहाँ पे, इंडस्ट्रियल वर्कर्स की, जो इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं, मैनेजर्स, कैपिटलिस्ट, इन सब का जन्म होना स्टार्ट हो गया. इसका मतलब एक रेवोल्यूशन के बाद एक अलग ही वेव जो है वो दौड़ गई और सोसाइटी में अलग अलग तरह की जो सोसाइटी के लोग हैं उनका जन्म होना स्टार्ट हुआ. ग्रुप्स ऑफ पीपल स्टार्टिंग कमिंग अप. लेट अस चेक कि हमारा कितना है, हाउ मच इज देयर टू बी टॉट फॉर टुडे, और शुड वी बी डन विद दिस. सो गाइज वी कैन डू वन थिंग कि हम इस लेक्चर को डिवाइड कर सकते हैं, एक और हम सेकेंड पार्ट लेके आ सकते हैं, that I will be conducting today itself. आज ही शाम को या कल I'll upload the video. But I'm thinking कि यहाँ तक हम अभी बस करते हैं, क्योंकि शायद इतना ही अंडरस्टैंड करने में आपको टाइम लग जाए. बहुत सारे बच्चे सोर्सेज और मटेरियल की बात कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि मैं अपने जो टेलीग्राम चैनल है सोशियोलॉजी ऑप्शनल बाय वानी मेहरा या वानी अकेडमी, ये दोनों चैनल्स हैं, आप इन्हें लाइक कीजिए, सबसे पहले ज्वाइन कीजिए.
इन्हीं चैनल्स के ऊपर जितना भी अपडेशन है मैं प्रोवाइड करती रहूंगी, और व्हाट्सएप पे आप मुझसे पर्सनली जुड़े रह सकते हैं फॉर एनी अदर काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन दैट इज रिक्वायर्ड। फिलहाल बुक लिस्ट पढ़ने के लिए मैं आपको यही बोलूंगी कि गाइस, अगर आपको कुछ भी पढ़ना है तो आप बीए का जो इग्नू का मटेरियल आता है सोशियोलॉजी का, वहां से आप स्टार्ट कर सकते हैं। मॉडर्निटी एंड सोशल चेंज पहला चैप्टर आप पढ़ सकते हैं। यू विल एक्चुअली गेट टू नो अ लॉट फ्रॉम इट। इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब टू द चैनल, शेयर द चैनल, एंड इन द डिस्क्रिप्शन आई विल प्रोवाइड टू यू पीपल माई कॉन्टैक्ट नंबर, टेलीग्राम चैनल, एवरीथिंग दैट यू कैन ज्वाइन फॉर योर नो फर्दर असिस्टेंस। क्योंकि अगर मैं इतनी ज़्यादा चीज़ें यहाँ बताऊंगी तो शायद आप समझ नहीं पाएंगे। उसी के अलावा अगर आप जनरल स्टडीज की तैयारी करना चाहते हैं, जीएस में पेपर 1, पेपर 2, 3, 4 सारे सब्जेक्ट्स, पॉलिटी, गवर्नेंस, डिजास्टर मैनेजमेंट, इंटरनेशनल रिलेशन, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, तो आप अन अकेडमी प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। अब अन अकेडमी पे मैं एजुकेटर हूँ, आप सब जानते हैं ये बात, बट ये मेरा खुद का चैनल है, ये मेरा खुद का प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे मैं अपनी मर्जी से जो चाहे वो पढ़ाऊंगी, ताकि मैं आप लोगों को जितना हो सके हेल्प कर सकूँ। बट जनरल स्टडीज़ के मेरे कोर्सेज अन अकेडमी प्लस पे है, तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेरा डिस्काउंट कोड है वानी मेहरा। आप जीएस मेरे से वहाँ पढ़ सकते हैं, और ऑप्शनल अभी आप यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं मेरे साथ। तो आप जीएस की सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं अन अकेडमी की, और मेरा रेफरल कोड वानी मेहरा है जो आप यूज़ कर सकते हैं, या VMIAS10 रेफरल कोड है। वो सारी डिस्क्रिप्शन आपको कमेंट सेक्शन में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अभी के लिए हम सेशन को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच। अगर कोई भी आपको डाउट आ रहा है, आप डायरेक्टली मुझे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, या आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। आई एम फ्री टू हेल्प ऑल ऑफ यू। थैंक यू गाइज, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।